this is not a paid video. No one's paying me to say or do any of this. Okay, why am I saying this? Because many people just go around on the internet baselessly saying that Next Toppers pay people or students to promote them or just say good stuff about them. I don't have subscribers. I have literally 33 subscribers the point I'm filming this video. So I have no one's paying me. It's all my unbiased view. The reason I'm making this video is because these controversies have they might affect students who are just starting 10th grade or something. They're gonna be like हम किसको trust करें कि नेक्स्ट टॉपर्स वाले कह रहे हैं पीडब्ल्यू बुरा है, पीडब्ल्यू वाले कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपर्स बुरा है. सो हु आर दे गोइंग टू ट्रस्ट? लेट आई एम गोना टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एवरीथिंग रियली ऑनेस्टली, बिकॉज मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है. मैं नेक्स्ट टॉपर्स को अच्छा बोलूँगी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं पीडब्ल्यू को अच्छा बोलूँगी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं किसी को भी कुछ अच्छा बोलूँगी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. I made this channel to help all those people. Anyone who sees this, for them, I want it to be useful and I want it to be helpful. So let's get into this video. Welcome or welcome back to my channel. My name is Dania and on this channel, I'm trying to help you out. So this video is going to be about a very peaking topic, that is Next Toppers and the controversies about them. So I'm going to try to tell you everything clearly about whether Next Toppers is good or bad. I'm going to tell you all the good points and the bad points also. I'm going to put forward everything and I'm going to clear all these controversies going on. So if you have time, please watch this video completely. So the controversy, the first controversy, or I should say the first fault everyone says is about Next Toppers is that they overhype 10th class. Do they actually overhype 10th class? Yes, the reality is yes, they do overhype. I feel that they do overhype 10th class. But I have counters. So first of all, that they also reassures you at the same time कि it's not that tough, you can do it. Okay, in marathons and every time they're just like कि भाई हो जाएगा, कुछ बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती, 10th हो जाती है और बाद में तुम लोगों को रियलाइज होगा कि 10th इतनी भी बड़ी कोई चीज़ नहीं है. Second of all edtech companies do overhype 10th. Just go and check other companies, everyone's like that. So सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स को इस बात पे क्यों हेट कर रहे हो? थर्ड ऑफ ऑल, हमेशा ओवर हाइप करना एक बैड नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है. हाँ, बहुत सारे बच्चों के लिए नेगेटिव हो जाएगा कि भाई तुमने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है एंड अब तुम जब इन सब की ये देख रहे हो ओवर हाइप हो रही एकदम 10th, तो तुम लोगों को लगेगा कि भाई मैंने तो कुछ करा नहीं और ये टफ होगा और तुम इससे तुम्हारी प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो सकता है. हाँ, इससे नेगेटिव साइड है पर इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है. जैसे मेरे लिए लाइक मैं बीच में एकदम कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई थी और आई वाज लाइक कि हाँ हो जाएगा. आई वाज कि भाई हो जाएगा, ईजी है. But when I saw these videos and I was like, bhai, I should study and I did, and which was necessary. It's not that easy. Okay, you have to work hard, but it's not as hard as they make it look, but it's also not as easy as you think it is. Third part is the paper leak. So do Next Toppers actually leak the paper? So I have just completed my 10th grade and I'm going to be telling you from honestly from my experience. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पेपर लीक बच्चों ने टर्म दे दिया है. इट्स कॉल्ड पेपर एक्सपेक्टिंग पेपर. सो अब ये 4 AM वाली लाइव क्या इससे कुछ क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं आए थे, कोई कह रहा है आए थे. सो आई हैव प्रूफ कि क्वेश्चंस उसमें से सेम आए थे. लाइक प्रशांत भैया लाइक ये क्वेश्चन करके जाना, ये आएगा, एंड इट डिड केम. आई जस्ट वॉज व्हेन आई वॉज अटेम्प्टिंग माई साइंस बोर्ड एग्जाम, आई वॉज लाइक सर्कलिंग द क्वेश्चंस प्रशांत भैया ने बताए थे कि हाँ ये आएगा. And you won't believe I got 31 out of the 39 questions were all that Prashant Bhaiya said कि I expected कि हाँ ये आ सकता है. दिगराज सर he also just said कि सुबह कि ये questions करना and ये आ सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, and they did come. And Shobit Bhaiya, there was a lot, not exactly from the 4 AM marathon, there were 2, but most from the 10 days marathon. Okay, so क्या वो सही में पेपर लीक है? नहीं, वो पेपर लीक नहीं है. देखो मैं बताती हूँ उनकी गैप डेज मैराथन का काम क्या है. वो पूरे साल तुमने जो पढ़ा है वो उसको एक जल्दी से तुम्हारे लिए रिवाइज़ करा सकते हैं. उन डेज़ में तुम्हें वो रिवाइज़ करा देंगे. और 4 AM वाले लेक्चर में वो तुम्हें अपनी पूरी बुक बस 2 घंटे में रिवाइज़ करा रहे हैं. तो उसको बस तुम उस पर डिपेंडेंट मत हो, ठीक है. वो खुद कहते हैं कि इस पर डिपेंड मत हो, हम तुम्हें हेल्प करा रहे हैं रिवाइज़ कराने में. बट ये नहीं है कि तुम बस कुछ नहीं करोगे और तुम डायरेक्ट बस 4 AM वाले लेक्चर दोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा. दे आर टेलिंग यू टू रिवाइज एंड दे आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन which I said as earlier I said it
कि पेपर लीक करना कोई मतलब कोई बहुत ग्रेट काम नहीं, 10th का छोटा सा सिलेबस होता है, दे रिसर्च एंड दे डू इट। तो हाँ, रिसर्च करते हैं वो तुम खुद भी कर सकते हो, बट वो तुम्हारे लिए काम आसान कर रहा है, वो तुम्हें रिसर्च करके दे रहा है कि भाई तुम ये कर लो। तो दैट्स द थिंग। अब एक हेट जो टेक्स्ट टॉपर्स को कह रहे हैं कि वो बच्चों को डिपेंडेंट बना रहे हैं शॉर्टकट्स के लिए, कि भाई हम बस 4 AM वाला लेक्चर देख लेंगे। तो कौन है ये लोग? भाई तुम जाकर एक बार मैराथन देखो, और वो खुद कह रहे हैं कि तुम सारे दिन पढ़ोगे तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, और सुबह वाले दिन मैं तुम्हें सब कुछ एक बार रिवाइज करा दूँ। वेन डिड दिस से कि भाई मत पढ़ो पूरे टाइम, पूरे साल मत पढ़ो, और बस एक 4 AM वाले लेक्चर में आ जाना, मैं तुम्हें सब करा दूंगा। दे नेवर सेड दैट। ओके, दे वाज लाइक कि हाँ ठीक है, तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो तुम ये सारी मैराथन अटेंड करो, तब भी तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर तुमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है या फिर ठीक ठीक पढ़ा है तो तुम्हें करो, तुम्हारे 95+ आ जाएंगे। दे नेवर सेड कि भाई बस तुम 4 AM वाला लेक्चर देख लेना एंड दैट्स हाउ यूर गोना डू। अनदर थिंग इज दैट एवरीवन जस्ट सेइंग कि भैया दीदी से मत पढ़ो। एंड ये बात उन लोगों ने कही है कि हाँ, जिन टीचर्स कहते हैं भैया दीदी से मत पढ़ो, दे आर राइट। दे मीन भैया दीदी जो खुद अभी पढ़ रहे हैं। लाइक अगर अब मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू हो जाऊँ तो डोंट स्टडी फ्रॉम मी, बिकॉज मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं खुद अभी सीख रही हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू कि मैं हाँ चलो मैं साइंस पढ़ाना शुरू कर देती हूँ एंड तो मैं चाहूँगी कि सब मुझसे पढ़ने लगो। दैट्स व्हाट द टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई भैया दीदी से मत पढ़ो। अगर हम शोभित भैया और प्रशांत भैया को भैया कह रहे हैं, दैट डजंट मीन दे आर नॉट टीचर्स। वी कॉल देम भैया बिकॉज दे आर लाइक दे आर मोर लाइक अ फ्रेंड टू अस। ओके, सो इसका ये मतलब नहीं है वो टीचर्स नहीं है। डोंट इसके लिए कि भाई भैया से मत पढ़ो, टीचर्स से पढ़ो। दे आर ऑल्सो, मैनी पीपल कॉल देम शोभित सर, प्रशांत सर। They are teachers, they are experienced teachers, they have been teaching for a while, they have accomplished a lot in their own lives, they are educated people, they have done everything, now they're teaching as a job. So don't just go like कि हाँ भैया से मत पढ़ो, सर से पढ़ो, शोभित भैया से मत पढ़ो, ऋतिक सर से पढ़ो, because you should study from teachers not भैया। That I saw this on Quora, that's why I'm telling you guys कि भाई if we call them भैया, that doesn't mean that they're not teachers, okay? We call them भैया because they're like connected to us. The last point is that PW versus next toppers. This is also so baseless, so senseless, so stupid कि भाई PW अच्छा है या next toppers अच्छा है. They both are amazing. Those who compares are just wasting your time, wasting their own time, and just I don't know what they're trying to do with their lives, but they are just trying to confuse you with everything. PW is an amazing thing. It's been for so long. Everyone trusts PW. Next toppers is also amazing. I'm telling you from my experience, it was my lifesaver. It was an exam saver for me because that was the thing. And I'm going to be very honest with you guys कि भाई वो they do help you so much. So don't go on this controversies. And PW is also amazing. I told you कि मैं खुद ऋतिक सर से पढ़ती थी एंड इट वॉज लाइक भाई जब तुम्हें दोनों फ्री में पढ़ा रहे हैं तो जस्ट डू इट ना। तुम जिससे पढ़ना है पढ़ लो, एक जाकर लेक्चर देखो, तुम्हें जिसका समझ आ रहा है उससे पढ़ लो। कंट्रोवर्सीज के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट होगा, तुम टीचर्स बदलते रहोगे एंड लास्ट टाइम पर फिर तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब बात है कि बैच वाले कि PW का बैच लेना चाहिए, नेक्स्ट टॉपर्स का बैच लेना चाहिए। अगेन तुम्हें जिससे समझ आ रहा है जाकर, सबके दोनों के फ्री लेक्चर्स हैं, जाकर देखो कि तुम्हें क्या करना है। कि अगर तुम्हें PW से समझ आ रहा है PW का बैच ले लो, नेक्स्ट टॉपर से आ रहा है नेक्स्ट टॉपर्स का ले लो। अब मैं एक बार, बोथ बैचेज आर अमेजिंग, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम प्राइस एंड दैट इज द थिंग कि भाई तुम लोग जिससे तुम्हें समझ आ रहा है जाकर उससे पढ़ लो और कंट्रोवर्सीज के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। अनदर पॉइंट इज़ दैट दे आर लाइक जस्ट ऐसा लगता है, बच्चे कहते हैं कि वो आते हैं PPT पढ़ते हैं और थोड़ी देर पहले NCERT रट के आ जाते हैं एवरीथिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, बस रटवा देते हैं। भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? जाके उनकी मैराथन देखो एंड देन यू नो भाई मेरे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरी कोचिंग में, मेरे स्कूल में कभी क्लियर नहीं हुए एंड आई वाज वाचिंग दिगराज सर्स वीडियो, प्रशांत भैया's वीडियो, शोभित भैया's वीडियो एंड द मैराथन इन द मैराथन इटसेल्फ दे क्लियर्ड इट। इन द एंड कंट्रोवर्सीज के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारा सब टाइम खराब होगा। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू 10th क्लास, प्लीज़ डू नॉट लिसन टू दीज पीपल हु आर जस्ट सेइंग कि भाई PW बुरा है, नेक्स्ट टॉपर्स बुरा है। A student who is genuinely trying to help you would
tell you that all institutes are good, it's a difference of opinion. Okay, अगर एक सही में कोई तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा है, तुम्हें बताना चाह रहा है, तो वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएगा, बिकॉज नो वन इज़ कम्प्लीटली गुड, नो वन इज़ कम्प्लीटली बैड. ओके, ठीक है. तो तुम खुद जाकर एक बार लेक्चर्स देखो, तुम्हें जिससे समझ आ रहा है तुम उसको करो, फॉलो करो, एंड बीच बीच में टीचर्स चेंज मत करना. Genuinely, I would tell you Next Toppers is really amazing. That's my review कि भाई Next Toppers is very amazing. It saved my exams. It helped me so much. I am going to follow them in 11th. Why? Because they are helpful for school, and that's what I'm focusing on. But if you're trying for NEET and JEE, I would really suggest you PW is the OG institute for that. But I'm just focusing, I'm trying to focus on the school and everything. So I'm gonna be studying from Next Toppers because they clear concepts so well. And that's all for today's video. I hope this helped you. I hope this cleared all your doubts about these controversies, कौन सही है कौन गलत है. So I hope to see you in the next video. Stay tuned. Bye.